Sadhguru, I can proudly say that I am in the top institute of eminence, which we now call heaven. And every student who has come here has burned himself inside out to come to this place. And that can be said about each and every institute in India. And after coming to this heaven also, our days and nights are same, working very hard to achieve the so-called aim. I want to know, but still, our careers are not assured. We don't know about our career. And we don't know whether our luxurious life of our dreams, whether we will ever achieve. Now, when we say about the other aspect, seeing the politicians, most of them, and rich criminals, most of them, at least almost fifth pass, not more than that, but they and their dependents, all having a assured career. But they don't go to Canada, they go to London. Yeah. They go to London, yeah. And citizenship of London is assured, and at the same time, they are having best of luxuries. So my point is, education and working day and night hard for it, is it worth for this society where we have poorer graduates and richer illiterates? Well, we must understand, literacy is on many different levels. ABC is one kind of literacy. On the street, there is another kind of literacy. In the political sphere, another kind of literacy. In the business world, another kind of literacy. So literacy is not just ABCD. That's a very simplistic way of looking at it. Somebody may not know ABC, but he is very literate with something else. And above all, you come to an Indian Institute of Technology, not for a luxurious life, because of thirst for knowledge, to know, to become competent, to be able to create something, to be able to create something in the world which has not been done till now. Not to somehow amass something at somebody's cost and live somewhere, wherever you think is luxurious. Look at their faces and see, do they look joyful? Well, they look like they've been fed like pigs, that you can see, but do they look joyful? Do they look fulfilled? Is there some great energy about them? Do you want to live a life like that? Hello? Do you want to live a life like that? I'm asking, please don't ever seek a life like that, because all you have in this life is, as I already said in the very beginning, this is just a certain amount of time. Time is going away. Since you sat here, you are about 35 minutes or more than that, an hour closer to your grave right now. You know this? Since you came here. Yes, all of us, yes or no? Mortality is one thing that we have forgotten, that is why we are thinking of all these funny things. Life is just going away. If this sank into you, actually minute by minute, you are closer to your grave, it's going to be over. So what will be the most important thing? How profound is your experience of life? And when it comes to activity, how profoundly can you touch life around you? This is all that matters, isn't it? Your experience of life is profound. When you sit here, in your experience, this is the most profound experience, because this is all that matters, the intensity. But think through this. Suppose you cook something, do you ever? Maggie. He's on MSG or something, huh? No, not that MSG, I'm just… What is that chemical? That's all… Monosodium glutamate. Yeah. So, if you cook something, even if you make Maggi noodles and you give it to your friend, eat it, pack, he spits it out. Do you like it? If he eats and says, this is fantastic,
Then you say, oh, nice. Because for even doing the 2-minute job, it's 2 minutes, right? The ad says it's 2 minutes, I don't know how long it takes. Huh? That's a myth, it's not 2 minutes. Even for the 2-minute job, you want to touch that somebody's life. If that guy spat it out, that's the last time you're going to give him those noodles. That saves his life, that's another matter. So if you build something, let's say you built a hall, people look at this and say, oh my God, terrible, and nobody wants to come into this hall. You want to build such a hall? No, you want people to come and say, wow. Yes? You want to write a book that nobody reads? Huh? ओके तब हम लोगों ने इसमें क्या देख रहे हैं कि ये सबसे पहला ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहला बात ये है कि जितने भी स्टूडेंट पढ़ के बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, चाहे वो आईआईटी हो या फिर हार्वर्ड हो या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मेहनत करके जो जाते हैं, ठीक है, ये लोगों का लाइफ बहुत स्ट्रगल रहता है। हम लोगों ने देखा 3 इडियट्स के मूवी से हम लोग अगर को रिलेट कर पाएंगे तो काफ़ी मेहनत से एंट्री मिलती है, अच्छा रैंक ला के, है ना। बेसिकली जनरल्स का बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर जाके भी इन लोगों को लग रहा है कि क्या हमारा लाइफ फुलफिल होगा कि नहीं, ठीक है। ऐसे बाहर से जो देख रहे हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा आप नोटिस कर सकते हैं इस चीज़ को कि बाहर से जो कुछ दिखता है और अंदर से जो कुछ होता है वो अलग अलग बात होता है। एक एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, कोई एक शीश महल में था, ठीक है, काफ़ी अभी तो शीश महल बहुत फेमस हो रहा है, 42 करोड़ समथिंग। कोई एक बहुत ब्यूटीफुल महल में रह के या 5 स्टार में बैठ के भी डिप्रेस्ड हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या पोजेस करते हैं, ये सोसाइटी के लिए मैटर करता है, ठीक है। आप बैठते हैं रोल्स रॉयस में जा रहे हैं, बेचारा गरीब आदमी देखे, वाह क्या मस्त, बस आपको इतना ही प्राइड होता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप उसी में बैठ के गाली बक रहे किसी को, इसी में बैठ के किसी को डांट रहे, माने ओवरऑल लाइफ में क्या चीज़ वैल्यू करता है, इस चीज़ के बारे में आदमी ने कभी सोचा ही नहीं। हम लोग लाइफ में अभी हम लोग को लगता है कि अगर ये सोसाइटी में मुझे इतना बोल दिया, हाँ ये अमीर आदमी है, बस उसी से ज़्यादा मैटर है, ठीक है, या फिर इसके पास पावर है। तो इसको स्ट्राइव करने के लिए आदमी लोग जाते हैं। और इंडिया में हम लोग का ऐसा नहीं था कि सब लोग पैसे के पीछे भागे, या फिर पैसा भी इम्पोर्टेंट नहीं, ये मत बेवकूफ़ी मत कर लेना कि नहीं पैसे के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, पैसे के अगेंस्ट, क्योंकि सोसाइटी इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया, अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो दैट इज़ रियली गोना बी अ बिग हर्ट, ठीक है। तो पैसा तो कमाना ही है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप डिस्गाइज करके या फिर ठग के पैसा कमा रहे हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है ना, उस पैसे को आप इंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि आपको डर रहता है किसी चीज़ का, हाँ, काफ़ी कुछ उसमें, काफ़ी कुछ है, आप समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो ये आदमी जिसने 10 आदमी का खून चूसा है, ठीक है, ये क्या कि आपको लगता है कि लाइफ को एंजॉय कर पाएगा? नहीं, अपने बच्चे के लिए डरेगा, अपनी बीवी के लिए डरेगा, सब चीज़ के लिए, क्योंकि इसने जो किया है ना, देखिए कर्म का लॉ ऐसा ही होता है कि मैं जिस तरह का करता हूँ उसी तरह का घूम फिर के कहीं ना कहीं पर मुझ पर वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको भी पता है। तो यहाँ पर मेजर क्राइटेरिया है इस लड़के को क्या लग रहा है, क्योंकि ये भी एक सोशल आदमी है, इसको लग रहा है कि पॉलिटिशियन लोग बहुत अच्छा लाइफ जी रहे, पढ़ाई वढ़ाई किए नहीं है, एक वोट से जीत गए, जीतने के बाद लाइफ पूरा एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, कभी 10-4 बंगला खरीद लिया है, 4-5 रेस्टोरेंट खरीद लिया है, ठीक है, हाँ बच्चे लोगों को फॉरेन में पढ़ा दिया। तो इस चीज़ का वैल्यू है, लेकिन आस्ते आस्ते आप जितना मैच्योर होते जाएंगे हम लोग को पता चलेगा लाइफ में एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इस लड़के को भी ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा लाइफ जी रहा है और हम लोग पूरा मेहनत करके ख़राब लाइफ जी रहा है। तो गुरुजी ने सबसे फर्स्ट पेज ये किया है कि तू यहाँ पर अच्छा लाइफ, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए आया या फिर हंगर फॉर नॉलेज के लिए आया है। तेरा भूख क्या है? भूख पैसा है
है भूख नॉलेज का है। जिसको भूख नॉलेज का रहता है वो डेफिनेटली बाद में उसको फाइनेंशियल तो मिलता ही है, लेकिन जिसको भूख नॉलेज का रहता है उसको ये मैटर नहीं करता है कि उसका फ्यूचर में कैसा होगा। वो अपने एक फील्ड में मेहनत करके एक विशेष आदमी बन जाता है, ठीक है। तो ये कहने का इनका तात्पर्य है, मेन तात्पर्य ये है, ठीक है। तो दूसरा चीज़ में ये रहता है कि अगर कंपेयर किया जाए लिटरेसी के बारे में, एक पॉइंट इस लड़के को बोला, यूजुअली ऐसा लगता है कि लिटरेसी होता है सिर्फ पेपर वर्क में ही होता है लिटरेसी, है ना। जिसके पास पेपर है, क्लास 10 पढ़ा, देखिए क्लास 10 का पेपर लेना ना मुश्किल नहीं है। अगर देखिए बिहार वगैरह चला जाएंगे, मैं पर्टिकुलरली उस नेम के ना, क्योंकि इसमें कई केसेस आए हैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं खुद भी बिहारी ही हूँ, लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि कई जगहों में है ना ऐसा होता है कि, और पहाड़ में भी कई जगह में होता है कि वो लोग एग्ज़ाम जो है बस कॉपी करके क्वेश्चन में आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो एक पेपर से हम लोग जज नहीं कर सकते, पहला बात, ठीक है। और लिटरेसी अलग अलग लेवल में होता है, आपका सिर्फ किताबी लेवल में ही नहीं होता है। आपको क्या लगता है जो पॉलिटिशियन उस स्टेज तक पहुँच गया, ऐसे ही पहुँच गया अंदाजी में, कोई भी अंदाजी में पहुँच जाएगा। उसने किसी न किसी चीज़ पर ध्यान दिया है, और ये ध्यान ही का वैल्यू है लाइफ में, ठीक है। आप पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, आप ठगाड़ी में ध्यान दे रहे हैं, किसी भी चीज़ ध्यान दीजिए तो गुरुजी यही बोलते हैं कि विंडो खुल जाएगा आपके लिए, दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन आपके लिए ध्यान जरूरी है, चाहे वो अच्छा चीज़ के लिए हो बुरी चीज़ के लिए, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इमोशनल लेवल में जो अंडरस्टैंडिंग लीडर्स लोगों का रहता है वो आदमी लोगों को नहीं होगा। आप 10,000 किलोग्राम का किताब पढ़ लीजिए, लेकिन आपको जो पॉलिटिशियन का इमोशनल अंडरस्टैंडिंग रहता है पीपल का, आदमी का कौन सा पॉइंट में हिट कर रहा है। जैसे कि अब मैं एक आम आदमी बन के गया, ठीक है, तो आदमी का इमोशनल अटैचमेंट है कि मेरा जैसा आदमी है ना, तो उसमें वो लोग ज़्यादा इमोशनली कोरिलेट कर देगा। अब हम लोग का मैं एग्जांपल लेना, हम लोग उधर एक गोरखालैंड का एक इशू है, तो उसमें क्या है ना, आदमी लोग जान देने के लिए तैयार है गोरखालैंड के लिए। अब ये इतना इमोशनल चीज़ है, और इसी को वहाँ के पॉलिटिशियन लोग खेलते हैं। अगर एक पॉलिटिशियन मैं गोरखालैंड लेके आऊँगा तो सबका वोट उसी के लिए होता है, दूसरा बोल देगा मैं लेके आऊँगा तो सबका वोट उसके लिए होता है। तो एक पिच रहता है ना, उसी पे पॉलिटिशियन लोग ज़्यादा ऐड करते हैं, जिस तरह के अभी का महंगाई का पिच है ना एक। लेकिन अभी देखिए, अभी जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसमें हम लोग को पता चल जा रहा है कि हम, अब देखिए मूवी में भी तो पता चल जाता है कौन हीरो है कौन विलेन है ना, वो आस्ते आस्ते पता चल जाएगा सब लोगों को। और अब मीडिया एक ऐसा ग्लास बन गया जिस लगा के सब लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। लेकिन हमको देख रहा है ना, हमको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, काम दिख रहा है लेवल से। हाँ, टैक्स थोड़ा बहुत लिया गया तो क्या, लेकिन डेवलपमेंट तो हुआ है कुछ हद तक, ठीक है। तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल हम इसी टॉपिक में आते हैं। तो लिटरेसी के बाद सिर्फ इसी में नहीं रहता है, वो दूसरी चीज़ में अटेंशन दिया है इसलिए वो परफेक्ट हुआ, दूसरा चीज़। और तीसरा पिच ये किया गया है इसमें, क्योंकि मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए ये सब चीज़। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, उन्होंने ये कहा है कि इतना मैं रिकॉल भी नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन इनका कहने का तात्पर्य ये है कि बेसिकली थर्ड पॉइंट में ये जो लड़का पूछ रहा है, मैगी का जो इशू आया है ना, तो 2 मिनट का मैगी का, इसमें क्या है ना एक्चुअली कि देखिए ऐसा होता है, नेटवर्क कभी कभी ऑफ हो जाता है कभी आ जाता है, लेकिन मैगी के नाम से याद आएगी कि क्या बात हो रहा है। मैगी में क्या बात है ना कि अगर मैं किसी को भी कोई चीज़ करके देना चाहता हूँ, ठीक है, अगर वो हेल्पफुल हो, वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ होता है आपके लाइफ के लिए, ठीक है। आप छोटा सा भी काम करते हैं, अगर उसको पसंद आए तो आपके लिए सबसे सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस वो होता है, ठीक है। आप ये नहीं कि 5 रुपये का कतरा लगा के रोड बना दिए और 3 दिन में एक्सीडेंट हो गया, आदमी मर जाए, और आपको कोई यही नहीं है, आप उस पर रिमोर्स भी नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन अगर हो रहा है तो दैट इज़
टू सम एक्सटेंट नॉट गुड। हाँ, तो उसको यही कहना है कि तुम क्या इंजीनियर बन के ऐसा आदमी बनना चाहते हो जो दूसरों के लाइफ को इम्पैक्ट करे। गुरुजी का बहुत मोटिवेशनल होता है। अगर इस लड़के ने सही से पकड़ लिया इस चीज़ को ना, तो डेफिनेटली ये आगे जाके बहुत बढ़िया करेगा, ऐसा चीज़ बनाएगा जिससे अंधों को आँख मिल जाए, या फिर लंगड़े चलना शुरू कर दे, या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में। क्योंकि अब इसके अंदर में ऐसा मोटिवेशन आ गया कि मुझे ऐसा नहीं बनना है जो माने जो रॉन्ग कहते हैं, जिसको रॉन्ग प्राइड लेके दूसरों के खून चूसे हुए पैसे में मुझे नहीं जीना है। यही पूछ रहे हैं कि तुम क्या ऐसा लग्जरी लाइफ जीना, तो आदमी लोग को तो लगता है कि ये लग्जरी लाइफ है, या फिर ऐसा लाइफ जीना चाहते हो जिससे तुम दूसरों के लाइफ को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देके जाओ। ठीक है, चाहे वो मैगी क्यों ना हो, जब तुम बनाते हो तो दूसरे आदमी जब खाते हो उसको लाइक करते, तुमको अच्छा लगता है कि नहीं। तो इसी तरह से तुम भी ऐसा कुछ बनाओ, फ्यूचर में तुमको दिखेगा प्रॉब्लम, आदमी लोग क्या समस्या से गुजर रहे हैं, ऐसा कुछ बनाओ जिससे क्या होगा कि आदमी लोग के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। ठीक है, और हम लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादातर आदमी जितने भी यूट्यूब में है, या फिर हम लोग का तो अभी फॉलोइंग नहीं हुआ है अभी कुछ भी, लेकिन आस्ते आस्ते हो जाएगा क्योंकि डिमांड रहेगा इसका, फ्यूचर में डिमांड रहेगा डेफिनेटली। हम लोग अभी ऐसे ही बना रहे हैं इन द सेंस, रीज़न हम लोग क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि गुरुजी का जो शब्द है वो सबको छू लेता है, सबको छू लेना चाहिए। बस हम लोग का इतना ही है। मैं क्योंकि मैं भी एज अ प्रोफेशन मेडिकल साइंस में हूँ, मैं मेडिकल एक टीचिंग करता हूँ, बड़ा पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी टाइम नहीं रहता है। ठीक है, मैं क्यों इतना टाइम निकाल रहा हूँ, आधा आधा एक एक घंटे का इसमें वीडियो बनाना, मुझे पैसे के लिए नहीं, डेफिनेटली है ना। बस यही चीज़ है कि इनका जो मैसेज है राइटली पुश फॉरवर्ड, या फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाएगी। क्योंकि हम लोग जब जानते हैं किसी चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, किसी में सच्चाई है, तो उससे आदमी को इम्पैक्ट होता है नेचुरली। ठीक है, तो हम लोग को ये बनाने का ये अर्थ है कि आपको भी और ज़्यादा समझ में आए कि ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग किस तरह से इस चीज़ को मैसेज शेयर करेंगे। क्योंकि आपके लाइफ में भी बहुत सारे, जब मैं था पहले मुझे भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता था लाइफ में, है ना। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए अभी है लेकिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उस समय के टाइम में आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, और बहुत आदमी लोगों को यहाँ पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने उन लोगों के लाइफ में टच किया है। और जो आदमी डिप्रेस हो गया था, जो आदमी सुसाइड करने वाला हो गया था, उसका लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर ऐसा पावर हम लोग के सामने है, हम लोग को डेफिनेटली शेयर करना चाहिए। और मैं यही करूँगा कि जो भी ये जो बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं ना, उसी चीज़ को मैं ब्रिज करने के लिए बेसिकली ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, No? You want to make a movie that nobody wants to see? No? You want people to see and walk out with tears in their eyes? Yes or no? When you do something, you must understand this. Human activity is meaningful only in some way we touch another life. How many lives is the question. You heard of Richard Bach? No? As a generation, you never read Richard Bach? Nobody? Oh, I'm surprised. In our generation, there was nobody who did not read Richard Bach. Please look him up. Richard Bach wrote a book called Illusions, another one called Jonathan Livingstone Seagull. It's all about flying, his entire life. I was supposed to fly with him 3 years ago, but at the age of 74, he was flying a small plane and he had an accident and broke some 16 bones in his body. So after that, he's not flying. So, his entire life was about flight, and all his books are about flight and how flight relates to our life. And in one of the books he writes, of all the joys of flying, I thought this is… after that I stopped reading him. Of all the joys of flying that he eulogized all his life, he said the greatest joy is when you see another pilot and you roll your wings and he responds rolling his wings, that's the greatest joy. After living an absolutely adventurous life, this is
the greatest joy, because touching another life always is like that. Whether it's music or dance or cooking or writing a book or building something, everything is because it touches another life, it matters, isn't it? A criminal does not touch other people's life like that. You have two ways to live. That is, people are joyful because you're here, or people will be joyful because you're gone. बोलिए बोलिए बोलिए, आपको कैसा बनना है? आप जब चले जाते हैं तो आदमी लोगों को बहुत ख़राब लगता है। आपको ऐसा बनना है, या फिर या फिर अदर टाइप। आप जाते हैं तो आदमी लोग वाह चला गया, चलो फाइनली। तो आपको, हम लोग की लाइफ में यही चॉइस है। आप ऐसा बनिए जो दूसरों के लाइफ को इस तरह से टच करते हैं, ठीक है? आप, हो सकता है आपके लाइफ को पता नहीं ये वीडियो किस तरह से टच करता हो, लेकिन डेफिनेटली आपके लिए बना है। तो अब यही है, हम लोग कुछ भी करते हैं, इट डज़न्ट मैटर इसका रिजल्ट अब 10 लाख होगा, 5 लाख होगा, ये इससे मैटर ही नहीं है। क्योंकि व्हाट मैटर इज़ मेरा इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या है, ठीक है? मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ कि नहीं, 100% मैं अपना दे रहा हूँ कि नहीं, है ना? तो ये सब चीज़ें ओवरऑल क्या है ना, अब काम करने के बाद आदमी लोग थक भी जाते हैं और बॉडीली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मेंटली भी एग्जॉस्ट होता है। उसके बाद आप, अगर मैं इस तरह से अभी रात को 11-12 बजे आराम से आपके लिए रिकॉर्ड कर सक रहा हूँ, तो डेफिनेटली योगा में किसी न किसी तरह से टच किया है, इसीलिए, है ना? और आप जानते हैं कि हड़बड़ी में तो मैं रहता हूँ नहीं, 10 मिनट को मैं 20 मिनट तक समझा सकता हूँ। चलिए, There are two ways to live. तो Please. आपको क्या चूज़ करना है? डेफिनेटली द वन। अगर आपको ऐसा बनना है कि आप अगर वहाँ से निकल जाए तो आदमी लोग को लगेगी अरे यार ये कब वापस आएगा। What will you choose? First one. First one. People are joyful because you're here. Yes, Yes. that's good. So, about somebody is living better than us, I'm saying you should not even look how somebody is living, because it's a bloody brief life, believe me. Before you know what's happening, it'll be gone. You may not think so right now, you think you have a lot of time on your hands. But if you intensely get involved in something, before you know what is happening, life will be gone. Because it's such a brief life. Have you noticed on a particular day, if you're very intense and joyfully involved in something, 24 hours just pass off like a minute? आपको बस ये बोलता हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठा था और अभी आपका 12 बज रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है कितना जल्दी टाइम चला जाता है। अगर आप किसी चीज़ में इस तरह से इन्वॉल्व है ना, डिप्रेशन का तो बात छोड़ दीजिए, वो तो लगता है कि 100 साल में भी नहीं आएगा। क्योंकि आप इनर इंजीनियरिंग एक बार कर लेते हैं ना, लाइफ में आपका विज़न इतना बड़ा हो जाता है ना? आप चाह के भी कुछ ना कुछ, नहीं चाह के भी कुछ ना कुछ करने के लिए आप अपने आप को डिवोट कर लेंगे, ठीक है? उसकी वजह से क्या होगा ना, अभी देखते हैं ज़्यादातर आदमी लोग एज थोड़ा सा हो जाता है, पता नहीं क्या करे, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखा हुआ था अपने लाइफ में, जिसकी वजह से वो बस 1 या 2 चीज़ अचीव करने के बाद उनको कुछ दिखता ही नहीं है। तो कॉन्स्टेंटली वो लोग पार्टनर के लिए जाते हैं, दोस्तों के लिए जाते हैं। मुझे तो, मैं बोल रहा हूँ ना, अकेला इतना एंजॉय करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितना कम मिलूँ उतना अच्छा। लेकिन अब आदमी लोग, पता ही है आपको, कुछ ना कुछ होता रहता है, इसकी वजह से और एंगेज रहते हैं। लेकिन ऐसा बात भी है कि जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं ना, तो आदमी लोग ऑटोमेटिकली आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि आपके पास आंसर होगा इस चीज़ का, ठीक है? तो ये आपको और एंगेज रखता है। ये आपको इतना एंगेज रहेगा ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब समय चला गया, और समय बहुत जल्दी चला जाता है। तो ये Is it so?
Another day you're a little depressed and looking around at everybody. और माने अभी देखिए 25 मिनट हो गया। That day 24 hours feel like a eon. So time is a very relative experience. Only miserable people will have a long life, because in misery time stretches itself. But if you're living an intense and exuberant life, poof, it'll be gone, 100 years will be gone like that. Shall I bless you with a long life? No. Even if you live to be 100, it should feel like you lived for 2 days. And that's how it will be. That is how it will be if you focus on creating something worthwhile. But if you're looking at other people, who is wearing better clothes, who is driving better car, whose house is better than mine, if you look at this, your life is ruined, because forever somebody will be wearing something better than you, somebody will be driving something better than you, somebody will be living in a better home than you. Yes or no? Forever you will become enslaved to that nonsense. Don't ever start your life like that. All of you, you're being empowered through education. You must think in terms of, what is it that I can create? What can I create in this life? Don't worry about how to earn a living with so much education and this many cerebral cells. You think earning a living is a problem when an earthworm does it? The Youth and Truth program has such wide and intense coverage nationally and internationally that social media has been buzzing and flooded with questions. We have the difficult job handpicking some of the questions. So Sadhguru, with your permission, I'd like to convey the questions to you. So one Pradeep asks, we are often reprimanded for using swear words. It is nowadays used as colloquial slang. What is the big deal with using slang words when I casually use it without intent?